যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম রে। হরে কৃষ্ণা, সাদর প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তলীলায় আছি, অষ্ট পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 71 থেকে কন্টিনিউ করব। চৈতন্য চরিতামৃতম অন্তলীলা 8.71 অনওয়ার্ডস, 71 নম্বর শ্লোক। আর দিন ভক্তগণ সহ পরমানন্দ পুরী, আর দিন ভক্তগণ সহ পরমানন্দ পুরী, প্রভু পাশে নিবেদিলা দৈন্য বিনয় করি, প্রভু পাশে নিবেদিলা দৈন্য বিনয় করি। রামচন্দ্রপুরী হয় নিন্দুক স্বভাব, রামচন্দ্রপুরী হয় নিন্দুক স্বভাব, তার বলে অন্ন ছাড়ি কিবা হবে লাভ, তার বলে অন্ন ছাড়ি কিবা হবে লাভ। পুরীর স্বভাব যথেষ্ট, পুরীর স্বভাব যথেষ্ট আহার করাইয়া, পুরীর স্বভাব যথেষ্ট আহার করাইয়া, যে না খায় তারে খাওয়ায় যত্ন করিয়া, যে না খায় তারে খাওয়ায় যতন করিয়া, খাওয়াইয়া পুনঃ তারে করে নিন্দন, খাওয়াইয়া পুনঃ তারে করে নিন্দন। এত অন্ন খাও তোমার কত আছে ধন, এত অন্ন খাও তোমার কত আছে ধন। সন্ন্যাসীকে এত খাওয়াইয়া করো ধর্মনাশ, সন্ন্যাসীকে এত খাওয়াইয়া করো ধর্মে নাশ। অতএব জানিনু তোমার কিছু নাহি ভাস, অতএব জানুন তোমার কিছু নাহি ভাস। কে কইছে ব্যবহারে কে বা কইছে খায়, কে কইছে ব্যবহারে কে বা কইছে খায়। এই অনুসন্ধান দেহ করায় সদায়, এই অনুসন্ধান দেহ করে সদায়। তখন রামচন্দ্রপুরী সেখান থেকে উঠে চলে গেল। এদিকে তিনি আরো খবর পেলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তরা অর্ধশনে রয়েছেন। তার পরের দিন পরমানন্দপুরী ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে দৈন্য ও বিনয় সহকারে निवेदन করলেন। परमानंद पुरी को भी महाप्रभु बहुत मानते थे, गुरु तुल्य है, माधवेंद्र पुरी का शिष्य है, ठीक है दिलीप प्रभु, तो वो भी महाप्रभु के लिए पूजनीय व्यक्ति है। जैसे रामचंद्र पुरी पूजनीय है वैसे परमानंद पुरी। আমার গুরুভ্রাতা রামচন্দ্রপুরীর স্বভাবই হচ্ছে সকলে নিন্দা করা, আর তার কথায় তুমি যদি অন্ন গ্রহণ ত্যাগ করো তাহলে কি লাভ হবে। রামচন্দ্রপুরীর স্বভাব হচ্ছে যে তিনি প্রথমে যথেষ্ট পরিমাণে আহার করান এবং কেউ যদি খেতে না চান তাকে তিনি জোর করে খাওয়ান, এইভাবে খাইয়ে তিনি তারপর তার নিন্দা করেন। তুমি এত খাও, তোমার কত ধন আছে, मैंने ऐसे करके बोलते हैं उसको, हाँ तुम इतना खाते हो, तुम्हारे पास कितना पैसा है। সন্ন্যাসীদের এত খাওয়িয়ে তুমি তাদের ধর্মনাশ করো, তাই আমি বুঝতে পারছি যে তোমার কিছুমাত্র পারমার্থিক উন্নতি হয় নাই। সন্ন্যাসীদের এত খাওয়িয়ে তুমি তাদের ধর্মনাশ করো, তাই আমি বুঝতে পারছি যে তোমার কিছুমাত্র পারমার্থিক উন্নতি হয় নাই। तो ऐसा लग रहा है कि परमानंद पुरी जब बोल रहे थे सामने क्या उधर खड़े थे क्या रामचंद्र पुरी, हो सकता है क्या ऐसे ही बोल रहा होगा। नहीं प्रभु, नहीं खड़े नहीं थे वो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना कि परमानंद पुरी और अन्य भक्त लोग दीनता और विनय पूर्वक महाप्रभु के पास। तो इस श्लोक का ठीक है, देखते आगे देखते। তাই আমি বুঝতে পারছি যে তোমার কিছুমাত্র পারমার্থিক উন্নতি হয় নাই। রাম हरे कृष्णा। ये परमानंद पुरी रामचंद्र पुरी को बोल रहे हैं ये वाला बात, मालूम नहीं, देखते हाँ लग तो रहा है, देखते हैं। রামচন্দ্র পুরীর কাজ হচ্ছে যে কে কিভাবে আচরণ করছে এবং কে কিভাবে খাচ্ছে সর্বদা তার অনুসন্ধান করে বেড়ানো। হরে কৃষ্ণ। শাস্ত্রে যেই দুই ধর্ম কইরাছে বর্জন। Next, please. पूनम जयसवाल। শাস্ত্রে যে দুই ধর্ম করাছে বর্জন, সেই কর্ম নিরন্তর ইহারও কারণ,
সেই কর্মে নিরন্তর ইহার কারণ। যে 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 দুটি আচরণ বর্জন করার নির্দেশ শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে সেই দুটি কাজই তার নিত্যকৃত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। क्या क्या वर्जन किया गया है? हमको लग रहा है ये जो 77 में दिया है, शास्त्री दिए नहीं नहीं, ये 79 में दिया है प्रभु। 79 में तो श्लोक दिया है, 78 अच्छा ठीक है। हाँ 78 में दिया है। पर स्वभाव कर्माणि पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसे न गर्हयेत् न प्रशंसे न गर्हयेत् विश्वमेकात्मकं पश्यन् विश्वमेकात्मकं पश्यन् प्रकृत्य पुरुषेण च। प्रकृत्या पुरुषेण च। प्रकृति ও পুরুষের মিলনে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে এক স্বরূপ দেখে পরের স্বভাব ও কর্মকে কখনো প্রশংসা বা নিন্দা করা উচিত নয়। এই শ্লোকটি এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ ভাগবতের উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। ओके, तो उद्धव को भगवान क्या बता रहे हैं? One should see that because of the meeting of material nature and living entity, the universe is acting uniformly. Thus, one should neither praise nor criticize the characteristics or activities of others. ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है ये प्रकृति और पुरुष का मिलन से ये सब हो रहा है। व्यक्ति ऐसे कार्य कर रहा है तो किसी का प्रशंसा या किसी का निंदा भी नहीं करना चाहिए। पंडिता समदर्शिना रहना चाहिए। यस, निर्गुणा निलंबरी माता जी। प्रभु जी इधर पुरुष तो लिखा नहीं, जीव लिखा है, भौतिक प्रकृति तथा जीव के संयोग के फलस्वरूप। तो जीव यानी कि बद्ध जीव। इंग्लिश में बेंगली में लिखा है प्रकृति और पुरुष मिलने विश्व ब्रह्मांडকে একরূপ দেখে। প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনে বিশ্ব ব্রহ্মাंडকে এক স্বরূপ देखे माने जो पंडित व्यक्ति है, जो भक्त हैं, जो शास्त्र के व्यक्ति है, वो प्रकृति और पुरुष मिलन को विश्व ब्रह्मांड के एक स्वरूपे देखे। तो वो अर्थ में पुरुष का अर्थ जीव ही लिखा है। जीव मतलब हम लोग आत्मा। ठीक है, मैं कब उसको ना बोल रहा हूँ। পরের স্বভাব ও কর্মকে কখনো প্রশংসা বা নিন্দা করা উচিত নয়। Okay? All this is happening because of interaction between matter and living entity. जीव और प्रकृति यानी मैटर, जो पंचभूत एक्सेट्रा 24 तत्व है, इसके साथ संस्पर्श में आने से ये सब होता है। कोई अच्छा काम करता है, कोई खराब काम करता है, तो जज नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सुनीत राधिका माता जी। प्रभु जी जो लिखा हुआ है ना कि 2 प्रकार के कर्मों का निषेध है, तो एक तो प्रशंसा नहीं करना चाहिए और एक आलोचना नहीं करना, निंदा नहीं करना चाहिए। हाँ, प्रशंसा भी नहीं करना चाहिए, निंदा भी नहीं करना चाहिए, बस समभाव रखना चाहिए। ज्यादा उल्लास नहीं होना चाहिए, ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। जस्ट एक्सेप्ट लाइफ एज इट इज, क्योंकि जो भी हो पा रहा है ये प्रकृति और पुरुष के इंटरेक्शन के वजह से हो रहा है। अगला श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो उस श्लोक में लिखा हुआ 77 में वे ही उसके नित्य कर्म है, तो वो तो सिर्फ आलोचना करता था, प्रशंसा तो करता नहीं था किसी का। नहीं, अभी स्टैंडर्ड एक तो करता था, एक तो खराब चीज करता था, तो वो भी नहीं करना। ठीक है, अभी कोई अगर एक सिद्धांत देंगे, सिद्धांत का हर एक एंगल फिट होगा उस व्यक्ति के लिए, तो जरूरी नहीं है। अगला श्लोक 79। तार मध्य पूर्व विधि प्रशंसा छाड़िया, तार मध्य पूर्व विधि प्रशंसा छाड़िया, पर विधि निंदा करे बलिष्ठ जानिया। पर विधि निंदा करे बलिष्ठ जानिया। अशोक प्रभु प्लीज कंटिन्यू। यस, अशोक प्रभु अनुवाद पढ़िए, अनुवाद तात्पर्य अशोक प्रभु। এই দুটি বিধির মধ্যে রামচন্দ্র পুরী পূর্ববর্তী বিধি প্রশংসা থেকে
পরবর্তী বিধির নিন্দা বলিষ্ঠ জেনে পূর্ব বিধি ছেড়ে পর বিধির নিন্দা করে বেড়ান। তাৎপর্য পূর্ব লিখিত শ্রীমদ্ ভাগবতের শ্লোকটিতে দুটি বিধির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে পূর্ববিধি হচ্ছে কারোর প্রশংসা না করা এবং পরবিধি হচ্ছে কারোর নিন্দা না করা। পরবর্তী শ্লোকটি থেকে বোঝা যায় যে পূর্ববিধির প্রশংসার থেকে পরবর্তী বিধির নিন্দা বলিষ্ঠ। তাই পূর্ববিধির অবহেলা হলেও পরবিধি সম্বন্ধে খুব সচেতন হওয়া উচিত। অর্থাৎ প্রকৃত নির্দেশ হচ্ছে কারোর প্রশংসা করলেও করা যেতে পারে, কিন্তু কখনোই কারোর নিন্দা করা উচিত নয়। একে বলা হয় শ্রেয়োক্তি বা দুটি অর্থবাচক উক্তি। রামচন্দ্র পুরী ঠিক তার বিপরীত আচরণ করেছিলেন, কেননা তিনি নিষ্ঠা সহকারে পূর্ববিধির অনুশীলন করতেন এবং পরবিধির অবহেলা করতেন। রামচন্দ্র পুরী যেহেতু নিন্দা না করার নির্দেশ পালন করেননি, তাই তিনি দুটি বিধি লঙ্ঘন করেছিলেন। Yeah, any query? Dilip Prabhu? मतलब it means man should praise, not criticize. एक जगह लिखा है प्रशंसा करनी चाहिए बट आलोचना नहीं करनी, ऐसा हाँ। ये तो अच्छा ही है। ओके, हम एक बार इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, बस 79 को। Of the two rules, Ramchandra Puri obeys the first by abandoning praise. But although he knows that the second is more prominent, he neglects it by criticizing others. Okay. এই দুটি বিধির মধ্যে রামচন্দ্র পুরী পূর্ববর্তী বিধির প্রশংসা থেকে পরবর্তী বিধির নিন্দা বলিষ্ঠ জেনে पूर्व विधि छेड़े परनिंदा करे बेरान। ओके, दो रूल्स है। एक क्या, ज्यादा प्रशंसा नहीं करना चाहिए और किसी का निंदा भी नहीं करना चाहिए। किसी का प्रशंसा नहीं करना चाहिए, किसी का निंदा नहीं करना चाहिए। तो किसी का प्रशंसा तो छोड़ के निंदा करते थे रामचंद्रपुरी, ये लिखा है। पूर्व कहीं किसी का कुछ क्या प्रश्न बताइए। पूर्व विधि में लिखा है प्रभु प्रशंसा करो, और पर विधि हो गया पर निंदा करना। हाँ। ना करो, तो ये बोला गया है इसमें। निंदा ना करा। তো পূর্ববিধি বা পরবিধি কোনোটাই ভালো না, কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে যদি পূর্ববিধি করা গেলে করা যেতে পারে, মানে পার্সেন্টেজ ইজ ভেরি লোয়ার, বাট পরবিধি কখনোই করা উচিত নয়। কিন্তু রামচন্দ্র পুরী সেটাকে উনি মানেননি এবং পরবিধিটাকেই বেশি করেছেন। Absolutely, well explained, very nice. Yes, सुमना गौरंगी माता जी। तो वो यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा है कि चूंकि वह आलोचना ना करने के नियम से अपने आप को बचाता रहा। तो आलोचना तो करता था ना রামচন্দ্রপুরী, যেহেতু নিন্দা না করার নির্দেশ পালন করেননি, नहीं उल्टा बोल रहा, তাই তিনি লঙ্ঘন করেছেন। प्रशंसा भी नहीं किया और निंदा भी किया। हिंदी में लिखा है चूंकि वह आलोचना ना करने के नियम से अपने आप को बचाता रहा। हाँ, तो दैट मीन्स आलोचना करता था। समझ में आया? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। नियम से बचाता गया मतलब नियम भंग करता गया वो। हाँ, सुषमा अग्रवाल माता जी। सेम माता जी जो पूछते हैं लास्ट वाला लाइन वही समझ में नहीं आ रही। अभी समझ में आया? अभी भी समझ में नहीं आया? बोलिए। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर पढ़िए एक बार आप लास्ट वाला लाइन, साउंड थोड़ा क्लियर कीजिए।
कुछ कुछ भक्त लोग का साउंड कभी क्लियर नहीं होगा, महामंजिल माता जी, सुषमा अग्रवाल माता जी, इन लोग का कभी क्लियर नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। हमको समझ नहीं आता है क्यों ऐसा है, ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन की वजह से या स्पीकर साउंड क्या होता है? स्पीकर में क्लास करती है इसलिए। साउंड क्वालिटी इज जस्ट वो पैथेटिक। आई मीन आप लोग थोड़ा देखिए आसपास, घर तो बड़ा है तो यहीं अलग अलग जगह बैठ के देखिए कहाँ अच्छा साउंड आता है। प्रभु जी आप बोल रहे हैं हरे कृष्णा, अब आ रहा है आवाज? हाँ एकदम बढ़िया। ये कैसे ठीक हो गया भाई? वो बना मुझसे उन प्रभु लोग जी स्पीकर से यूज करते स्पीकर हैं, चला के रखते हैं ना, इसीलिए स्पीकर बंद ब्लूटूथ से करके। ब्लूटूथ से ओके, चूंकि नील वाला वह बात से बोलिए। हाँ बोलिए। चूंकि वह आलोचना न करने के नियम से अपने आप को बचाता रहा। तो बचाता रहा मीन्स तो कि इसके मतलब कि ये हुआ कि वो निंदा नहीं आलोचना करता। ना करते हुए, पहले वो पढ़िए, आलोचना, क्योंकि वो आलोचना ना करने के नियम से। हाँ ना करने के नियम से बचाता रहा, दैट मीन्स वो आलोचना करता था। अच्छा, अगला श्लोक 80 नंबर। पूर्व परयोर मध्ये परविधिर बलवान। ज्योति माता जी। ज्योति माता जी, ज्योति बने ज्वाला, अभी माता जी। चंदा देवी माता जी। यस। संजय प्रभु जी, शंभू प्रभु जी। माय गुडनेस। कोई नहीं। बोलो प्रभु जी। सबके हाँ, समझ बोलिए। बोलिए। पूर्व परम मध्य बलो विधि बलवान। विधि बलवान। ये श्लोक के न्याय शास्त्रों से भी उद्धृत है। ओके? न्याय शास्त्रों से लिया गया। म्यूट 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 शंभू प्रभु म्यूट। এই শ্লোকটি ন্যায় শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃত। পূর্ববর্তী বিধি এবং পরবর্তী বিধির মধ্যে পরবর্তী বিধি अधिक गुरुत्वपूर्ण। ओके, वही जोशा प्रभु बताया था। ठीक है, अगर आप प्रशंसा नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन किसी का निंदा मत करो। हाँ, तो परवर्ती विधि इज मोर इंपॉर्टेंट। अगला श्लोक 81। যাহা গুণ শত আছে তাহা না করে গ্রহণ। शंभू प्रभु जी बोलिए। যা গুণ সত্য আছে তাহা না করে গ্রহণ। গুণ মধ্যে ছলে করে দোষ আরোপণ। গুণ মধ্যে চলে করে দোষ আরোপণ। যেখানে শত শত গুণ রয়েছে তা গ্রহণ না করে রামচন্দ্রপুরী গুণের মধ্যে কপটতা করে দোষ আরোপণ करें। हाँ, दो खराब चीज करते हैं। एक तो गुण देखता ही नहीं है, और दूसरा क्या, जो दोष देखता है एक्चुअली वो दोष है भी नहीं, लेकिन उसी को दोष बनाकर आरोपण करता है, डिस्कस करता है, फैलाता है। इहारो स्वभाव इहा करिते ना जुयाय। श्रीवास যারো प्रभु जी। স্বভাবিয়া করিতে না ঘুরায়। श्रीवास प्रभु सच्ची शुद्ध श्रीवास प्रभु बोलूं। ইহারও স্বভাব ইহা করিতে না জুয়ায়। তথাপি কহিয়ে কিছু মর্ম দুঃখ পায়। তথাপি কহিয়ে কিছু মর্ম দুঃখ পায়। ইহার বচনে কেনে অন্ন ত্যাগ করো। ইহারও বচনে কেনে অন্ন ত্যাগ করো। পূর্ববৎ নিমন্ত্রণ মান সবার বলো ধরো। পূর্ববৎ নিমন্ত্রণ মান সবার বলো ধরো। প্রভু কহে সবে কেনে পুরীরে করো রোষ। প্রভু কহে সবে কেনে পুরীরে করো রোষ। সহজ ধর্ম কেহেতে হো তারও কি বা দোষ। সহজ ধর্ম কেহ তেহ তারও কি বা দোষ। ইয়েস প্রভু। তার তার স্বভাবের কথা আমি বলতে চাই না, কিন্তু আমার অন্তর আজ অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছে বলে আমি কিছু বলছি। परमानंद पुरी बोल रहे। ठीक है शुभंकरी माता जी, परमानंद पुरी महाप्रभु को बोल रहे। तो बहुत उनको दुख लगा अभी आज, इसलिए मैं आज मुंह खोला। তার কথায় তুমি কেন অন্ন ত্যাগ করেছো?
পূর্বের মতন তুমি নিমন্ত্রণ স্বীকার করে সকলের অনুরোধ রাখো। চৈতন্য মহু তখন বললেন, আপনারা কেন সকলে রামচন্দ্রপুরীর প্রতি রুষ্ট হচ্ছেন? ইনি তো সন্ন্যাসীর স্বাভাবিক ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছেন, তাতে তার কি দোষ? इट इज लाइक अगर क्रिटिक्स है तो क्या लिखता है कोई वन शुड कीप देयर फ्रेंड्स क्लोज एंड क्रिटिक्स क्लोजर, ऐसा कुछ है ना भागीरथ माता जी? कुछ আছে? याद नहीं आ रहा है। हाँ, one should निंदक keep their नेड़े foes- राखी आंगन कुटी छवाए। निंदा हाँ, करने पंकज वाले बाबू। आंगन में कुटिया बना के रखना चाहिए। ठीक है। निंदक नेड़ी राखिए, निंदक को अपने पास में रखिए। हाँ, तो क्या क्या इसका फायदा क्या होगा प्रभु जी? बिन So that you पानी can साबुन improve. बिना निर्मल होए सुभाए, बिना साबुन और पानी के स्वभाव निर्मल हो जाएगा। You can improve. ठीक है। प्रभु जी, you can आपको improve. अपने गलती का पता चलता रहेगा, यही मतलब है। फिर भी नहाना बंद मत कीजिएगा। यस, तो उसीलिए महाप्रभु देखिए, ऑल्दो ही इज क्रिटिकल, लेकिन उनको महाप्रभु यहाँ प्रशंसा कर रहे हैं। सिमिलर हुआ था जब जगदानंद पंडित ने कौन बोला था कि ये जो छोटा बच्चा आ रहा है, आप डेली इनसे मिल रहे हैं, इनका माता विधवा है, तो समाज इसको ठीक से नहीं दिखेगा। याद है कुछ आया था, कौन था वो? जगदानंद दामोदर मालूम है, दामोदर पंडित ने दामोदर पंडित। हाँ, महाप्रभु ने दिया। हालांकि उनको भेज दिया, सचिमा जाओ तुम, इधर पुरी से जाओ, तुम अभी बंगाल में जाओ, बंगाल में जाके मेरे माँ का ख्याल रखो। उनका ऐसे डिमोशन हो गया था, लेकिन एट द सेम टाइम महाप्रभु ने वो बात सुन भी लिया और वो बच्चे से और मिलता नहीं था। सो শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তখন বললেন, আপনারা কেন সকলে রামচন্দ্রপুরীর প্রতি রুষ্ট হচ্ছেন? ইনি তো সন্ন্যাসী স্বাভাবিক ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছেন, তাদের তার কি দোষ? যদি হইয়া জিহ্বা লম্পট অন্য অত্যন্ত অন্যায়, যদি হইয়া জিহ্বা লম্পট অত্যন্ত অন্যায়, জ্যোতির ধর্ম প্রাণ রাখিতে আহার মাত্র খায়, জ্যোতির ধর্ম প্রাণ রাখিতে আহার মাত্র খায়। সন্ন্যাসী হয়ে জীবের তৃপ্তি সাধন করা অত্যন্ত অন্যায়। সন্ন্যাসীর কর্তব্য হচ্ছে প্রাণ ধারণের জন্য আহার করা। दिस इज व्हाट इट इज। সন্ন্যাসীর ধর্ম নেই, सबका धर्म है, सब वैष्णवों का सबका धर्म है। क्या है? प्राण धारणेर জন্য আহার করা, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। गाड़ी चलने के लिए जितना पेट्रोल चाहिए उतना ही पेट्रोल डालिए, ऐसे यही है धर्म। ठीक है, और ये सबको मालूम है कितना हमको खाना चाहिए, सबको मालूम है। ये तो नहीं बोल सकते किसी को मालूम, तो कैसे पता चला कितना चपाटी खाना चाहिए? आपको ये सबको मालूम है कितना रहना चाहिए रोटी। To eat to live, not live to eat. एक्सेलेंट। अभी चैट बॉक्स में सब लिखिए कितना चपाटी लेते हैं आप लोग। नहीं मत लिखिए, ऐसे ही मजाक कर। अगला श्लोक। तबे सबे मेली प्रभु रे बहु যত্ন কইলা, তবে সবে মেলি প্রভুরে বহু যত্ন কইলা, সবার আগ্রহে প্রভু অর্ধেক রাখিলা, সবার আগ্রহে প্রভু অর্ধেকে রাখিলা। তখন সকলে মিলে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে পুরোপুরি ভাবে আহার করতে বহু অনুরোধ করলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কেবল অর্ধাংশ মাত্র গ্রহণ করলেন। দুই পণ কৌড়ি লাগে প্রভুর নিমন্ত্রণে, দুই পন কৌড়ি লাগে প্রভুর নিমন্ত্রণে, কভু দুই জন ভোক্তা কভু তিন জনে। কভু দুই জন ভোক্তা কভু তিন জনে। ये सुमन गौरंगी माता जी। प्रभु ये जो इसका ऊपर वाला जो 86 का है, कि उन्होंने पहले का आधा ग्रहण करके उन्होंने पहले का आधा ग्रहण करना स्वीकार करके उनके अनुरोध का उत्तर दिया। तो मतलब आधा तो कर दिया था महाप्रभु ने। পুরোপুরি ভাবে আহার করতে বহু অনুরোধ করলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কেবল অর্ধাংশ মাত্র আহার গ্রহণ করলেন। बहुत रिक्वेस्ट के फिर भी आधा ही लेते थे। मतलब जो ले रहे थे वही ले, मतलब रामचंद्र मौर्य की आलोचना के बाद में उन्होंने जो आधा किया था वही आधा ले रहे। आधा नहीं किया तो उस समय 1/4 कर दिया था, अभी 50%।
चौथाई सेवा 25 से 50 हुआ। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার নিমন্ত্রণের মূল্য 2 পণ করি নির্ধারণ করলেন এবং তা কখনো তারা 2 জনে এবং কখনো 3 জনে আহার করতেন। থোড়া ইমপ্রুভ हुआ है। অভোজ্ঞান্য বিপ্র যদি করেন নিমন্ত্রণ अन्य अभय अन्य विप्र यदि करेन निमंत्रण প্রসাদ মূল্য লইতে লাগে কৌড়ি 2 পণ। प्रसाद मूल्य लैते लागे कौड़ी दुई पण। কোন ব্রাহ্মণ যখন মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করতেন তখন যার গৃহে তিনি ভোজন করতে পারতেন না তার কাছ থেকে তার প্রসাদের মূল্য স্বরূপ কেবল 2 পণ করি নেওয়া হতো। ओके, सो कोई अगर हो सकता है कोई अयोग्य व्यक्ति है उनके घर में महाप्रभु भोजन नहीं करेंगे लेकिन उनसे फिर दक्षिणा लेते थे। यही तो हिंदी में क्या लिखा है फिर से पढ़िए। यदि ऐसा ब्राह्मण निमंत्रण देता जिसके घर का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया जा सकता था तो उसे प्रसाद खरीदने के लिए 2 पन कौड़ियां देनी होती थी। ओके, सो वो पैसे से उनका इस हिसाब से भागीरथा माता जी उस गृहस्थ का अर्थ भी भगवान का सेवा में लग रहा है। ठीक है, अयोग्य व्यक्ति है लेकिन कम से कम लक्ष्मी देकर तो उनका सेवा में लग रहा है। तो वो 2 पण कोड़ी दे करके कौन फिर बनाता था? महाप्रसाद जगन्नाथ मंदिर से अच्छा मंदिर से लेते संत के मंदिर से। छत्र भोगना क्या था ना, वो छत्र कहाँ से, वो क्या लिखा था ना उसमें, छत्र से खरीद लेते थे। यस अशोक प्रभु। ये 2 पन कौड़ी मतलब क्या हुआ प्रभु, कौन सी मात्रा हुई? अरे बाबा ये कैलकुलेशन उस दिन आया था ना। 2 पन तो एक तो वजन होता है और कौड़ी हो गया पैसा, तो 2 पन कौड़ी यानी कि 2 पन खरीदने का जो पैसा। नो 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 नो, 2 पन भी एक कोई मॉनेटरी फिगर है, नॉट पन माने वो वजन वाला नहीं, नॉट वेट का यूनिट नहीं है। 12 गोंडा 1 पन, वजन वाला वजन ही तो होता है प्रभु, वजन ही होता है। 1 गोंडा 12 तो घंटा रेट है नहीं ना प्रभु। 20 घंटा 20 घंटा तो 1 पौंड। और 20 गोंडा 1 पन। ये फाइनेंशियल यूनिट है, वजन का यूनिट नहीं है। ओके, सुमना गोरा की माता जी। तो वो 2 पन में जो भोजन जितना भोजन आता था उसको 2 व्यक्ति या कभी कभी 3 व्यक्ति करते थे, यही बोलना चाह रहे हैं ना? एकदम। ভোজন ভোজান্নে ভোজান্ন ভোজান্ন বিপ্র যদি করে ভোজান্ন বিপ্র যদি নিমন্ত্রণ করে ওই অভোজন অ আছে কি, আমি তো ভোজান্ন দেখছি 89। भोजन में भोज्यान्न আচ্ছা 89 ভোজান্ন বিপ্র যদি নিমন্ত্রণ করে ভোজান্ন বিপ্র যদি নিমন্ত্রণ করে কিছু প্রসাদ আনে কিছু পাক করে ঘরে কিছু প্রসাদ আনে কিছু পাক করে ঘরে পণ্ডিত গোসাই ভগবান আচার্য সার্বভৌম পণ্ডিত গোসাই ভগবান আচার্য সার্বভৌম নিমন্ত্রণের দিনে যদি করে নিমন্ত্রণ নিমন্ত্রণের দিনে যদি করে নিমন্ত্রণ তা সবারও ইচ্ছায় প্রভু করেন ভোজন তা সবার ইচ্ছায় প্রভু করেন ভোজন তাহা প্রভুর স্বাতন্ত্র নাই জয়ছে তার মন তাহা প্রভুর স্বাতন্ত্র নাই জয়ছে তার মন ভক্তগণে সুখ দিতে প্রভুর অবতার ভক্তগণে সুখ দিতে প্রভুর অবতার যাহা জয়ছে যোগ্য তাহা করেন ব্যবহার যাহা জয়ছে যোগ্য তাহা করেন ব্যবহার। আর আর যে ব্রাহ্মণের গিয়ে মহাপ্রভু ভোজন করতে পারতেন সেই রকম কোন ব্রাহ্মণ যখন তাকে নিমন্ত্রণ করতেন তখন তিনি কিছু প্রসাদ আনতেন এবং কিছু ঘরে পাক করতেন। बहुत सिमिलर होगी ना, पाक करते ना, हम लोग तो पैकिंग कर लेते हैं बहुत सिमिलर है, पाक करते हैं। पाक মানে रंधन करो ना। ओ रंधन आधा बनाता था आधा लेके आता था बाजार से। আচ্ছা, ये कैसे हुआ? তখন তিনি কিছু প্রসাদ আনতেন
প্রসাদ পাক করতে গেছে মানে এবং কিছু আনতেন অর্থাৎ পারচেজ করতেন আর কিছু রন্ধন করতেন। पहले जैसे पहला वाला जो था जिसके घर में खा पाते थे, जिसके घर परचेस में क्या खा बोल रहे हैं आप? पाते थे। अशोक प्रो परचेस क्यों करेंगे? ये तो योग्य व्यक्ति है। नहीं, तो কিছু প্রসাদ আনতেন অর্থাৎ कुछ प्रसाद মানে खरीद যে- तो जगन्नाथ का प्रसाद हो सकता है महाप्रभु को खिलाना होगा, तो कुछ खरीदते थे और कुछ वो बनाते थे उनके लिए। ओके, पंकज में थोड़ा ऊपर कीजिए। गदाधर थोड़ा ऊपर। हमको तो ये लग रहा है पाक करते माने इसको माने घर में ले आता था, हमको लग रही है पाक नहीं माने- नहीं 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 प्रभु, वो बनाते थे घर में, कुछ बनाते थे आइटम। हुआ है बनाते। जब ऐसा ब्राह्मण निमंत्रण देता जिसके घर का निमंत्रण स्वीकार किया जा सकता है, तो वो ब्राह्मण प्रसाद का कुछ अंश खरीदता और शेष को अपने घर में तैयार करता। अच्छा, वो ब्राह्मण तो फिर तिनी माने वो ब्राह्मण का बात किया जा रहा है। हाँ, ब्राह्मण कुछ खरीद के लाता बाजार से और कुछ घर में बना के फिर महाप्रभु को सर्व करता। ओके, हाँ, नाउ इट मेक्स सेंस। हाँ, क्लियर है, थैंक्स प्रभु। आगे गदाधर। गदाधर पंडित गोस्वामी ভগবান আচার্য সার্বভৌম ভট্টাচার্য যখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করতেন, তাদের ইচ্ছায় মহাপ্রভু ভোজন করতেন। তাদের কাছে মহাপ্রভুর স্বাতন্ত্র্য ছিল না, তাদের ইচ্ছা অনুসারে তিনি ভোজন করতেন। उन लोग के साथ नहीं चलेगा, कैसे उन लोग जो बोलेगा वैसे ही लेना पड़ेगा महाप्रभु। यस, भक्तদের दिखा नहीं रहे, मेरे पास हिंदी खुला हुआ है। भक्तদের भगवान आचार्य सर्वम भट्टाचार्य है। हाँ, या पूर्व नाम, ये जो नवद्वीप में जो नाम था, फिर वो भी क्षेत्र संन्यास लिया था ना वाइफ के साथ, ऐसे कुछ आया था कभी, पूरी में रहेंगे बस, जैसे अभी हरे कृष्ण। Yes, भगवान आगे। भगवान आचार्य प्रभु जी और सार्वभौम भट्टाचार्य दोनों अलग अलग लोग हैं ना। एक ही व्यक्ति है भगवान आचार्य। यस, हमको वो तो याद अलग नहीं आ लिखा रहा है। एक सेकंड रुक जाइए, अलग ही लिखा, अलग व्यक्ति है, क्या लेकिन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? नहीं, यार, हमारे इसमें आया था क्या? पहले आया था कि भगवान आचार्य अलग है, ऐसे अच्छा, आया एक था सेकंड पहले। एक सेकंड सार्वभौम भट्टाचार्य के आगे का नाम किसी को याद है? सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रीवियस नेम आया था एक बार, प्रीवियस नेम सार्वभौम भट्टाचार्य का प्रीवियस नेम क्या है? বাসুদেব ভট্টাচার্য। हाँ, वासुदेव सार्वभौम। বাসুদেব ठीक সার্বভৌম, बोला। হ্যাঁ। वासुदेव सार्वभौम था, सॉरी ये नहीं है व्यक्ति, दूल्हा अलग व्यक्ति है। ये सार्वभौम भट्टाचार्य जब नवद्वीप में रहते थे तो उनका नाम ये था, फिर उन्होंने अपना वाइफ के साथ उधर पुरी में जाकर क्षेत्र संन्यास लिया। यस, शशि जायसवाल माता जी। वही मैं तो तभी पूछ रही थी प्रभु जी। ওকে, আর পরি প্রভুজি, ভক্তদের সুখ দেওয়ার জন্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাই যেখানে যেমন উচিত সেই অনুসারে তিনি আচরণ করতেন। ওকে, जब अपना अंतरंग भक्त है उन लोग का बात तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन किसी ब्राह्मण के घर में जाएंगे दिलीप प्रभु तो वो जो भी खिलाएंगे मान लेंगे क्या? नहीं। यस, सुनिधि राधिका माता जी। प्रभु जी, जब अन्य ब्राह्मण का निमंत्रण होता तो महाप्रभु वहाँ पे नहीं जाते, फिर इधर उनके यहाँ प्रसाद खाते थे, गदाधर पंडित और सार्वभौम भट्टाचार्य के यहाँ। नहीं तो वहाँ निमंत्रण में नहीं जाते थे, ये लिखा गया है क्या? नहीं तो क्या प्रभु जी बताइए। कौन सा पहले श्लोक समझ नहीं आ रहा है वो पहले बताइए, क्योंकि अभी 91 प्रभु जी, 91 प्रभु जी, 91 में लिखा है जब इन लोग बुलाते थे अपने घर पे तब अपना मर्जी नहीं चलता, तब इन लोग का मर्जी चलता, ये लिखा है। ओके, लेकिन प्रभु जी हिंदी में तो कुछ और लिखा है। आई डोंट नो। गदाधर पंडित गोस्वामी भगवान आचार्য সার্বভৌম ভট্টাচার্য যখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করতেন, তাদের ইচ্ছায় মহাপ্রভু ভোজন করতেন। उन लोग जो बोलता था उतना ही लेना पड़ेगा। তাদের কাছে মহাপ্রভু स्वतंत्र ছিলেন না, মহাপ্রভু अपना मर्जी या जिद नहीं चलेगा, তাদের इच्छा अनुसार তিনি भोजन करते हैं। क्लियर ही तो है, हिंदी में क्या लिखा है? नहीं प्रभु जी, लिखा है यदि किसी दिन श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन करने का निमंत्रण अन्यों के यहाँ मिलता और यदि गदाधर पंडित, भगवान आचार्य या सार्वभौम भट्टाचार्य निमंत्रण देते तो महाप्रभु को तनिक भी छूट नहीं रहती थी।
अच्छा मैं एक बार इंग्लिश पढ़ लेता हूँ। ज्योति माता जी हैं? नहीं, ओके, 90 नंबर है ना। Even on a day when Sri Chaitanya Mahaprabhu was invited to dine by others, हाँ ठीक बोला आपने। If Gadadhar Pandit, Bhagwan Acharya or Sarvabhauma Bhattacharya invited him, Sri Chaitanya Mahaprabhu had no independence. He would accept their invitation as they desired. So already अगर कोई महाप्रभु का दूसरा अपॉइंटमेंट था, लेकिन अगर गदाधर पंडित और भगवान आचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य अगर इनवाइट करेंगे तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा और इन लोग के पास ही जाना पड़ेगा। ठीक है, यही है। थैंक यू। हरे कृष्णा, वो जाना भी पड़ेगा और प्लस वो लोग जो बोलेंगे जितना देंगे उतना खाना पड़ेगा, जितना देंगे उतना ही खाना पड़ेगा। आदि इच्छा महाप्रभु भोजन करते हैं। नहीं, ये लिखा नहीं है जितना देना पड़ेगा उतना खाना पड़ेगा, कहाँ लिखा है? उनका इच्छा से, वो अपना नियम से नहीं चल सकते। हाँ, लेकिन ये लिखा नहीं है जितना क्वांटिटी देगा उतना ही खाना पड़ेगा, ये लिखा नहीं। ओके ओके, टाइम हो गया। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, সবে বলো হরি, अमृतम की जय, विश्वदास जगत रूपाद की जय, प्रेमानंदे हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल। वृंदावन धाम की जय।